اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں سلطان آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ قاضی فاضل سلطان کے پاس آتے ہیں اور اپنا استعفیٰ سلطان کی جانب بڑھا دیتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں یہ کیا ہے فاضل؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں میں اپنے فریضے سے معزولی چاہتا ہوں۔ سلطان اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا سر اونچا کرو قاضی فاضل، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہو۔ تو قاضی فاضل سر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے آپ کو درمیان راستے میں چھوڑ دیا میرے سلطان، آپ کا نائب ہونا عظیم ترین اعزاز ہے، لیکن میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ سوچتے ہوئے اپنے فریضے سے معزولی کا طلبگار ہوں۔ سلطان استعفیٰ لے کر دیکھتے ہیں اور اگلے لمحے اسے پھاڑ ڈالتے ہیں، پھر اسے قاضی فاضل کی جانب پھینکتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے لیے آپ طلب کریں، یہ فریضہ جس نے تمہیں دیا ہے جب تک وہ واپس نہیں لے لیتا تم اس راستے سے نہیں ہٹ سکتے فاضل، جانے کے لیے بھی بہت راستہ ہے، حقیقت کو دیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ قاضی فاضل پوچھتے ہیں میرے سلطان کیا حقیقت پسند ہونا بہت مشکل نہیں ہے؟ میں ان لوگوں میں سے ہو گیا جو حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سلطان ان سے کہتے ہیں میں نے تمہارے دل کی پاکیزگی پر ذرا برابر بھی شک نہیں کیا اور کبھی کروں گا بھی نہیں، ہم ایک ہی مقصد کے ہم سفر تھے لیکن مختلف سوچ میں کاربند تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ متحد ہو گئے ہیں، ہمارا راستہ ابھی طویل ہے۔ قاضی فاضل ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں چلو دیوان ہمارا منتظر ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے دیوان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں چاتیون نے حج کے قافلے سے لوٹا ہوا سامان اکٹھا کیا ہوتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ اس کے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ چاتیون ان سے کہتا ہے اس سونے پر مسلمانوں کا خون ہے، یعنی جو آپ لوگوں کا حق ہے، یہ سونا میں نے محلوں میں بیٹھ کر نہیں بلکہ اپنی تلوار سے حاصل کیا ہے، اپنی تلوار سے خون سے لیا ہے، اب صلاح الدین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ سورما چاتیون زندہ باد، سورما چاتیون زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں اور چاتیون ان پر سونے کے سکے پھینکتا ہے۔ پھر ہنوک سے کہتا ہے ہنوک یہ ہے حقیقی طاقت، عوام اب ہمارے پیچھے ہے۔ اس لیے لاڑکائی کا کمانڈر وہاں پہ آتا ہے جسے دیکھتے ہوئے چاتیون کہتا ہے لگتا ہے کہ عزت مآب نے ہمیں بڑی شدت سے یاد کیا ہے نا؟ تو کمانڈر اس سے کہتا ہے بادشاہ آپ کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر چاتیون کہتا ہے تو پھر بادشاہ کو انتظار نہیں کرواتے؟ اے لوگوں مت بھولنا میں رینالڈ چاتیون ہوں، جب تک میں یہاں ہوں تم اپنے گھروں میں بہت سکون کی نیند لوگے، خداوند کچھ کے ساتھ ہے۔ ادھر دیوان میں سلطان کہتے ہیں کچھ بھی کر کے ہم بادشاہ لاڑکائی کے لشکر کو پیچھے ہٹانے پہ مجبور ہیں۔ اسفیانی کہتے ہیں کیری کی شکست کے بعد ان کے لیے یہ جرت ناممکن سی ہے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں ہم نے اسلامی اتحاد قائم کر کے حقیقی ناممکن کو حاصل کر لیا ہے، کچھ کو اپنی تحوین میں لینے کے اعتبار سے دشمن کے لیے سب سے خطرناک چیز مسلمانوں کا متحد ہونا ہے۔ دشمن منصوبہ بندی ہماری طاقت کے مطابق کرے گا، ہم اگر خود کو صلیبیوں کے مقابلے میں کمزور ظاہر کرتے ہیں تو یہ انہیں مزید پرجوش کر دے گا، ہمیں کمزور سمجھتے ہوئے ہمارے اوپر چڑھ دوڑ کر ہمیں تہس نہس کرنا چاہیں گے۔ اس معاملے میں اپنے نام جتنا پر یقین ہوں۔ امیر عزت الدین کہتا ہے تو اس منصوبے کے مطابق انہیں ہمارے اتحاد کا ان نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، موصل، حلب اور قرب و جوار کی عمارتوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، ہم انہیں اس بات کا یقین دلائیں گے۔ امیر تومان پوچھتا ہے کیسے ہوگا یہ؟ تو سلطان کہتے ہیں کیریک اور ایبلن کا خطرہ ابھی کے لیے گزر چکا ہے، ہم وہاں کے زیادہ تر فوجیوں کو شام واپس کھینچ کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ ہمارے بے یار و مددگار ہونے کے بارے میں سن لیں۔ امیر تومان کہتا ہے ہم پہ جو بھی لازم ہے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب وہ وقت آئے گا اور ہم کچھ میں داخل ہوں گے تو جس طرح انہوں نے ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا ہم بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تومان کی بات سن کر سلطان غصے سے کہتے ہیں تومان کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ کیا تم کچھ میں داخل ہو کر خون کی ندیاں بہانا چاہتے ہو؟ کیا تم گزرگاہوں پر خون میں لت پت لاشیں دیکھنا چاہتے ہو؟ عزت الدین کہتا ہے میں بھی امیر تومان جیسی سوچ رکھتا ہوں، قصاص چاہیے، وہ بھی کسی بھی قسم کے رحم و کرم کے بغیر، لوٹ مار اور قصاص کے لیے آپ کے لشکر کو اجازت کی ضرورت ہے۔ سلطان کہتے ہیں اگر میں نہ دوں تو؟ امیر تومان کہتا ہے تو پھر سلطان کہتے ہیں یہ اس بارے میں بات کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے، جبکہ ہم اتحاد کے لیے شکر گزار ہیں، نئی علیحدگی کی ضرورت نہیں ہے، اصل معاملے کی جانب لوٹتے ہیں۔ اگر ہم صلیبیوں کو جنگ کے میدان میں کھینچ سکتے ہیں تو ہماری فتح ہوگی اللہ کے حکم سے۔ ہمیں سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے قاضی فاضل، قدس کی جانب شہر کو بغیر جنگ کے حوالے کرنے کی دعوت کا خط بھیجیں گے، ہر چیز روایات کے مطابق ہو تاکہ کچھ بھی مشکوک نہ لگے۔ قدس میں لاڑکائی چاتیون سے کہتا ہے تم واضح طور پر میرے اور میرے احکامات کے مد مقابل آئے ہو اور اس کی سزا کیا ہوگی واضح ہے۔ چاتیون کہتا ہے میں جانتا ہوں عزت مآب، آئیں میرا سر لے لیں۔ تو لاڑکائی سے کہتا ہے میں لوں گا، وہ بھی قدس کی عوام کے سامنے۔ جواباً چاتیون کہتا ہے لیکن جناب یہ ایک مناسب خیال نہیں ہو سکتا، قدس کے لوگ میں ہی قدس کی حفاظت کر سکتا ہوں، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو لاڑکائی کہتا ہے اپنا سر بچانے کے لیے تمہیں اور بہتر جھوٹ گڑنے کی ضرورت ہے۔ چاتیون لاڑکائی کے کمانڈر لیو کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے جناب یہ رہا آپ کا معاون لیو، یہ میری باتوں کا چشمدید گواہ ہے۔ لیو ایسا ہی ہے نا؟ لیو کہتا ہے بادشاہ سلامت۔ میدان میں جمع اس بڑے جمع غفیر نے سورما چاتیون کا پرجوش استقبال کیا ہے۔ چاتیون کہتا ہے اب اس صورت میں مجھے قتل کرنا یہاں تک کہ عام عوام کے سامنے کرنا آپ کے زیادہ کام نہیں آئے گا عزت مآب، کیونکہ لوگوں کا آپ کے لیے دکھایا جانے والا بھروسہ واضح ہے۔ اگر آپ انہیں مزید ناراض کرتے ہیں اور یہ بھی کہ آپ کی فوج کے بیشتر قیمتی کمانڈر مجھے مبارکباد دینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں، عزت مآب کیا میں آپ کو ایک راز بتاؤں؟ آپ کے فوجی اس امن کے کھیل سے بہت تھک چکے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی تھکے ہوئے فوجی کی تلوار کہاں اڑ جائے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن یقیناً عزت مآب آئیں رکے نہیں، میرا سر لے لیں، میری زندگی کچھ کے لیے قربان ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی چاتیون جھکتا ہے کہ سبیلا بہت غصے میں وہاں داخل ہوتی ہے اور چاتیون سے کہتی ہے تم کس قسم کے گھٹیا آدمی ہو؟ تم کون ہوتے ہو اس امن کو توڑنے کی جرت کرنے والے جس کو میرے بھائی اور بابا نے باری قیمت ادا کر کے قائم کیا؟ یہ دیکھ کر لاڑکائی کہتا ہے میری ملکہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جنگل میں بورو درخت کے سارے ایک پھول اٹھائے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسی لمحے سلطان اس کے پاس آتے ہیں۔ سلطان کو دیکھ کر بورو پوچھتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں ہوں؟ تو سلطان کہتے ہیں ہمارا خون اور دکھ ایک جیسے ہیں، مجھے اپنے بھائی کے لیے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بورو پوچھتا ہے میرے اندر کی آگ کیسے بجھے گی بھائی؟ تو سلطان کہتے ہیں نہیں بجھے گی، بالکل بھی نہیں، بعض آگ بجھائی نہیں جا سکتی بلکہ اس کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے۔ تم اس آگ کے ساتھ زندہ رہو گے، ہر صبح اس کے ساتھ اٹھو گے، لیکن سب کچھ کے باوجود ثابت قدم رہو گے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی آگ ہے جو ہمیں جنگ میں کھڑا رکھتی ہے بورو، مت بھولو۔ جو آگ کو سیدھا کرنا نہیں جانتا وہ خود کو جلا دے گا۔ بورو کہتا ہے جلنے کا نہیں بلکہ جلانے کا وقت ہے، تو
आप ये कह रहे हैं? सुल्तान कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। बोरो कहता है मैंने अपनी खातून खो दी, अब मैं मुकम्मल नहीं हूँ। सुल्तान कहते हैं जो कुछ भी बचा है उसके साथ चलो, बाज नुकसानात इंसान के लिए रहनुमा बन जाते हैं बोरो। और मत बोलो हम कुछ की जानिब सिर्फ अपनी तलवारों के जरिए पेशकदमी नहीं करेंगे, हम दुखों और आरज़ुओं के साथ वहाँ के लिए पेशकदमी करेंगे, शायद सिर्फ इसीलिए हम कुछ फतह कर लेंगे इंशाल्लाह। तुम्हें एक आग दी गई है बोरो, तुम उस आग के साथ किसे जलाओगे, तुम इसका इंतखाब करोगे। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं और गमगीन बोरो सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि खलील कुछ में लाड़गैया के सामने मौजूद होता है। लाड़गैया उसकी जानिब से दिया हुआ खत पढ़ने के बाद कहता है तो तुम्हारा सुल्तान चाहता है कि हम शहर हवाले कर दें। तो खलील कहता है और वाहिद चीज जिसकी वो तलब रखते हैं वो कुछ नहीं है, हमारे ताकतवर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये शहर अमन को तहस नहस करने वाले चातियों के सर समेत हवाले करने का हुक्म देते हैं। यह सुनकर बालिन कहता है तुम आम एलची नहीं हो, इस बात को देखें तो फैसला हतमी है। तो खलील कहता है बिल्कुल ये ऐसी पेशकश नहीं है जिस पे मुज़ाकरात किए जाएं, ये फैसला है और हतमी फैसला, आपको मालूम होना चाहिए कि ये आखिरी तंबीह है। लाड़गैया कहता है अपने सुल्तान से कहो कि हम कुछ अपने हाथों से आपके हवाले नहीं करेंगे, हम इस वाक़े की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनकी तमन्ना जंग की है तो वो अपना हिस्सा लेंगे। खलील कहता है फिदिया बहस का मौजू ही नहीं है, हमारी वाहिद शर्त सिर्फ और सिर्फ कुछ में इंसाफ है और ये इंसाफ भी सिर्फ अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साए में अपनी आबोताब दिखाएगा। लाड़गैया कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ सलाहुद्दीन का साया कुछ की एक चट्टान पर भी नहीं पड़ेगा, अब जाओ और अपने सुल्तान से कहो मैं कुछ या चातियों को हवाले नहीं करूंगा। खलील कहता है तो फिर अपने ऊपर गजब नाजिल होने का इंतजार करो। ये कहते साथ ही खलील जाने लगता है तो चातियों कहता है अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके जवाब में एक छोटी सी चीज शामिल करना चाहता हूँ। लाड़गैया के इशारे पर चातियों खंजर खलील के सीने में गाड़ देता है। खलील हाथ पीछे करने की कोशिश करता है तो चातियों मजीद जोर डालता है। बालिन इस मंजर को देखते हुए एकदम आगे बढ़ता है और खलील को सहारा देता है। ये देखकर लाड़गैया हक्का बक्का रह जाता है और एकदम से उठते हुए कहता है चातियों ने केलची का खून वो भी किसी बादशाह के सामने कैसे बहा सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या किया है? जवाबन चातियों कहता है मैंने सिर्फ सलाहुद्दीन को जवाब दिया है। खलील को देखते हुए बालिन बहुत परेशान और गमगीन हो जाता है जबकि खलील अपनी जान कुर्बान कर देता है। बालिन उसकी आंखें बंद कर देता है और उठ के चातियों से कहता है गटकिया आदमी क्या तुम कभी अकल करोगे? ये कहते साथ उसे दबोच लेता है और कहता है जब तक तुम कुछ में हो कुछ को किसी भी मुसीबत की जरूरत नहीं है। लाड़गैया कहता है बालिन छोड़ दो इसे, वैसे भी जो होना था हो गया, ये खत वैसे भी जंग का ऐलान है, अब वापसी की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर चातियों बालिन से कहता है तुमने बादशाह की बात सुन ली है? तो बालिन उसे पीछे झड़क देता है और लाड़गैया चातियों से कहता है जबकि एलची को तुमने कत्ल किया तो इसलिए सलाहुद्दीन तक मेरा जवाब भी तुम पहुंचाओगे, वो भी एलची की लाश के साथ। चातियों कहता है क्या मुझे आप इस तरह सजा दे रहे हैं? दुश्मन के पास शामी गुकबरो सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान आपके ख्याल में वो इस खत का जवाब कैसे देंगे? वो हमारी पेशकश कबूल नहीं करेंगे, लेकिन ख्वाह हम अय्यूबियों के तौर पर अकेले भी रहे, उन्हें सिर्फ इतना जान लेना चाहिए कि हम उनकी तरफ बढ़ना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैथिस वहाँ पे आकर कहते हैं मेरे सुल्तान जैसा कि आपने हुक्म दिया था हमने अपने बेशतर सिपाहियों को एब्रेन और कैरिक से निकाल दिया। बोरो कहता है उन्हें इस बारे में जल्द ही मालूम हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या ये उन्हें इस बात पर कायल कर सकता है कि हमारी तादाद बहुत कम है। सुल्तान कहते हैं जब खलील बाहिफाजत वापस आएगा तो हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे, हम अगर दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम क्या चाहते हैं तो हमारा मनसूबा बेहतरीन अंदाज में काम करेगा। गुकबरो पूछता है मेरे सुल्तान अमीर तुमान और इज्जतुद्दीन के मुतालबे उनके बारे में क्या कहेंगे? तो सुल्तान कहते हैं सुलेबियों ने बहुत साल पहले कुछ को लूट लिया था, उनका जुल्म आज भी याद है। अमीर तुमान और इज्जतुद्दीन नहीं समझते कि मैं वहाँ क्या नाम छोड़ना चाहता हूँ, मैं उन्हें ये समझाने का रास्ता तलाश करूंगा इंशाल्लाह। कुछ में चाहती हूँ लाड़गैया से कहता है मैं उस चरवाहे के सामने उसके एलची की लाश के साथ पेश नहीं हूँ बल्कि सिर्फ एक ताकतवर फौज के साथ जाऊंगा। तो लाड़गैया उससे कहता है तुमने मेरा हुक्म सुन लिया है चातियों, तुम जिस एलची को कत्ल कर चुके हो उसे लेकर शाम जाओगे। चातियों कहता है मोहतरम बादशाह मुझ पर मजीद दबाव न डालें। विलियम कहता है बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं शाम जा सकता हूँ। मगर बालिन एकदम से कहता है नहीं, तुम खुद को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। विलियम कहता है बालिन वो एलची को नहीं मारते चाहे कुछ भी हो जाए। लाड़गैया कहता है विलियम मैं तुम्हें शाम क्यों भेजूं? तो विलियम कहता है हमें खबरें मिली हैं कि हलब और मोसल सलाहुद्दीन के साथ खड़े नहीं हैं, अमन को तोड़ने ने हमें मुश्किल में डाल दिया, लेकिन अगर खबरें दुरुस्त हैं तो इसका मतलब है कि फायदा हमारा है। यह सुनकर लाड़गैया कहता है तुम ज़ाती तौर पर जानना चाहते हो कि शाम में क्या हो रहा है? शाम में शमसा खातून ज़मुर्द को एक खत देते हुए कहती है कि बिलातुल सुखरा की चोटी पर रखने के लिए झंडे का जरूरी सामान हमारे सुल्तान चाहते हैं कि उसे इस तरह से तैयार किया जाए। फिर दूसरा खत देते हुए कहती है और ये दूसरे झंडे का नक्शा है लेकिन एक जहाज की शक्ल में। ज़मुर्द कहती है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप ऐसी चीज क्यों तैयार करना चाहती हैं? शमसा खातून कहती है हमारे सुल्तान ने हुक्म दिया है, यकीनन वो इसे भी गुंबद पर रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कहाँ। ज़मुर्द खत लेते हुए कहती है मैं फौरन इन्हें तैयार करवाती हूँ। दिन रात ढल जाते हैं और वज़ीर अमाद गमगीन होते हुए सुल्तान के पास आते हैं। मेरे सुल्तान वो इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? खलील, उन्होंने खलील को शहीद कर दिया मेरे सुल्तान। यह सुनकर सुल्तान हक्के बक्के रह जाते हैं और उठते हुए पूछते हैं कैसे? वो कैसे एक एलची को कत्ल कर सकते हैं? वज़ीर अमाद कहते हैं विलियम उसकी लाश लेकर आया है, मेरे सुल्तान वो आपके सामने पेश होना चाहता है। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। कुछ में लियो लाड़गैया के पास आता है और उससे कहता है मेरे बादशाह खुशखबरी है, पोप के दस्ते नए चर्च के मालिक की क़यादत में शहर में दाखिल हो गए हैं। यह सुनकर लाड़गैया बहुत खुश होता है और कहता है जिस खबर का मैं इंतजार कर रहा था आखिरकार। शाम में विलियम को सुल्तान के सामने पेश किया जाता है। सबके चेहरों पर बहुत गुस्सा होता है जबकि विलियम के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खौफ तारी होता है। बोरो पूछता है एलची को मारने का क्या मतलब है? मुझे ये मत बोलना कि हम इसका बदला भी बाद में लेंगे भाई, मुझे इजाजत दे, मैं इस शैतान का सर इसके शरीर से अलग कर दूंगा और बादशाह को नेज़े पर लगाकर भेजूंगा। एथिस भी कहते हैं बोरो ठीक कह रहा है, जाहिर है कि उन्होंने इस शैतान को हमारे साथ मजाक करने के लिए भेजा है। विलियम कहता है फैसला करने में जल्दी ना करें सुल्तान। गुकबरो गुस्से से कहता है बात करने की इजाजत मिलने से पहले बात ना करूं। गुस्से में विलियम को देखते हुए सुल्तान कहते हैं खड़े हो जाओ। विलियम खड़ा होता है तो सुल्तान उससे कहते हैं लाड़गैया की हिम्मत कैसे हुई मेरे मामून खुसूसी को मार कर यहाँ एलची भेज रहा है? तो विलियम कहता है
मैं आपके गुस्से को समझता हूँ, लेकिन उसे कुछ के बादशाह के हुक्म से कत्ल नहीं किया गया। सुल्तान हजरत मुजरिम चातियोन है, किसी भी हाल में एलची महफूज रहते हैं, लेकिन बादशाह के सामने पागलोनी हरकत हुई, किसी को मुदाखलत का मौका नहीं मिला। यकीन करें मुझे वाकई बहुत अफसोस है और ये वजह है कि मैं यहाँ हूँ। सुल्तान खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या तुम यहाँ अपने कमजोर बादशाह के नाम पर माफी मांगने आए हो जो एक कासिद की भी हिफाजत नहीं कर सका? तो विलियम कहता है, हमारे बादशाह ने माजरत की है, हम काफिले पर छापे के बारे में भी अपनी वजाहत नहीं कर सके। हम एक दूसरे के खिलाफ करने वाला दुश्मन एक बार फिर वही है, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग और ज़मीर को बरकरार रख सकते हैं। अमन के लिए ज्यादा देर नहीं हुई। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, अगर तुम्हारा बादशाह अपनी बातों में ईमानदार होता तो मेरे मामले खसूसी की लाश के पास उस शैतान की लाश भी होती। विलियम कहता है, यकीन करें लड़ाई ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। चातियों से निजात का वाहिद रास्ता इस अमन को बहाल करने पर मुनसिर है जिसे हमने यीशु मसीह की तरह खो दिया। हम अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं उसका गंदा सर खुद आपको लाकर दूंगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, कोई जरूरत नहीं होगी इसकी, क्योंकि जब मैं कुछ में दाखिल हूँगा मैं हर उस शख्स को वही सजा दूंगा जिसका वो मुस्तहिक होगा। विलियम कहता है, सुल्तान हजरत हकीकत पसंद बने, मुहासरा आपके लिए भी मुश्किल होगा। आपने जिस इस्लामी तहाद की ख्वाहिश की थी वो कायम नहीं हो सका। हलब और मौसल आपकी बात नहीं मानेंगे। तो काजी फाजिल कहते हैं, कुछ बागियों का दस्तबरदार होना हमारी फौज की फतह को नहीं रोक सकता। सुल्तान कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? विलियम कहता है, कभी नहीं, मैं सिर्फ हकाइक बयान कर रहा हूँ। अगर आप यरूशलेम की तरफ मार्च करने पर इस्रार करते हैं तो ये अंधी लड़ाई जारी रहेगी। दोनों फरीक अपने बच्चे खो देंगे कुछ और अमन को नुकसान पहुंचेगा। सुल्तान उसके पास आकर कहते हैं, अमन का मौसम खत्म हो गया, तुम्हें अपनी बादशाह का मातम शुरू कर देना चाहिए। मैं कुछ में दाखिल होने के लिए दूसरे मुसलमानों की मदद की उम्मीद नहीं कर रहा। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं खुद अकेले हमला करूंगा, लेकिन कुछ को जालिमों के लिए नहीं छोड़ूंगा। आप जाओ और अपने नामवर बादशाह से कहो अपने तख्त से लुत्फानंदोज़ हो जाए, मैं जल्द उसे तख्त से गिरा दूंगा। ये सुनते साथ ही विलियम वहां से चला जाता है, जबकि सुल्तान के साथी इस बात से काफी मायूस दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में शमसा खातून सुल्तान को एक नक्शा दिखाती हैं, जिसे देखते हुए सुल्तान कहते हैं, तो आखिरकार ये खत्म हो गया। शमसा खातून कहती है, ये शाम में सबसे हुनरमंद उस्ताद का काम है, क्या आपको पसंद आया? तो सुल्तान कहते हैं, अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे। शमसा खातून पूछती हैं, क्या आप मुझे अब जहाज की हिकमत के बारे में बताएंगे? तो सुल्तान कहते हैं, मैंने हमेशा इमाम शाफी का हाथ अपने ऊपर महसूस किया है। मैं इस जहाज को उनकी कब्र के ऊपर एक इलामत के तौर पर रखना चाहता हूँ, ताकि सब देख लें और जान लें कि इस जहाज के नीचे इल्म का समंदर है। खबर भेज दो, जहाज फौरन कायरा रवाना हो जाएगा, उसे मेरे भाई आदिल की तरफ से कब्र पर रख दिया जाए। शमसा खातून कहती है, हिलाल को भी कुछ काम की जरूरत है, अगर आप इजाजत दें तो जब फतह होगी तो मैं उसे बजाते खुद कुछ लाना चाहूंगी। सुल्तान कहते हैं, हमारे रास्ते जोड़ने वाला हमारा गाना था, इंशाल्लाह जल्दी कुछ के साथ हमारा दोबारा मिलाप होगा। शमसा खातून कहती है, जब मैं तुम्हें अपने घोड़े पर सवार जैतून के पहाड़ से मस्जिद अल-अक्सा तक जाते हुए देखूंगी तो हमारा ख्वाब हकीकत होगा सलाहुद्दीन। सुल्तान कहते हैं, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा शमसा। रात के वक्त कुछ में विलियम लाडगाय और बाकी साथियों से कहता है, जैसा कि तो सलाहुद्दीन हमला करने के लिए प्रोज़म है। लाडगाय पूछता है, इसकी फौज की क्या सूरत हाल है, क्या उसने मुसलमानों से वो हिमायत हासिल की है जो उसने मांगी थी? विलियम कहता है, जो मालूमात मुझे मिली है और जो मैंने शाम में देखा है उससे जाहिर होता है कि सलाहुद्दीन अकेला है। मौसल और हलब के अमीरों ने खुल के कहा है कि वो सलाहुद्दीन की खातिर नहीं लड़ेंगे। खुद सलाहुद्दीन ने भी इस बात की तस्दीक की है। यह सुनकर चातियोन कहता है, इज्जत माँ बाप देख रहे हैं, आप फजूल में डर रहे थे। सलाहुद्दीन अब सिर्फ बिखरे हुए रेवड़ का चरवाहा है और हम उसके खिलाफ शेरों का खून ख्वार रेवड़ है। फतह यकीनी है। बालिन कहता है, देखो हम पहले भी कई बार इसका मुशाहिदा कर चुके हैं, अगर दुश्मन सामने सलाहुद्दीन खड़ा है तो हमें अपने इक़दामात में बहुत मोहतात रहना होगा। अब हमारे दिफा के लिए कुछ आखिरी सरजमीन है, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सबीला कहती है, बालिन ठीक कहता है, कुछ हमारी आखिरी करारगाह है, हमें कोई फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। मगर चातियोन कहता है, मेरे अजीम बादशाह सलाहुद्दीन का जवाल करीब है, कुछ पहुंचने से पहले मैं उसे मैदानी जंग में मिलूंगा और मैं हतमी फतह के साथ वापस कुछ आऊंगा। यह सुनकर बालिन कहता है, मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि कैरिको रेबलन में क्या हुआ था चातियोन। सलाहुद्दीन ख्वाह कितना ही गुस्सा क्यों ना हो वो फिर भी अकल से काम लेगा। चातियोन कहता है, और मैं अपनी तलवार से काम लूंगा बालिन, और मैं देख सकता हूँ कि ये शानदार फर्ज मेरा और मेरे आदमियों का है। फिर लाडगाय से कहता है, बादशाह हजरत मैं इस फर्ज के लिए आपसे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावन से इजाजत मांगता हूँ और मैं सुन रहा हूँ कि वो फतह का ऐलान कर चुका है। लाडगाय कहता है, हम सब फतह की खबर सुन सकते हैं, रोम से आने वाले दस्तों समेत पूरी फौज तैयार की जाए। बालिन कहता है, मोहतरम बादशाह इसके बजाय हम यकीनी बनाने के लिए एक दस्ता भेज सकते हैं। लाडगाय कहता है, चुप करो, अब ये मामला एक बार में हल हो जाएगा, सलाहुद्दीन और उसकी फौज तबाह हो जाएगी और मैं जाती तौर पर इस मुकद्दस फतह के कमांडर की हैसियत से फौज की क़यादत करूंगा। बालिन गुस्से से कहता है, आप अपनी फौज को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हैं। ये कहते साथ ही बालिन वहां से चला जाता है। उधर कारगाह में बैबोरा सुल्तान के पास जाकर कहता है, मेरे सुल्तान जैसा कि आपने तोको की थी, सुलेबी फौज अपनी तकरीबन तमाम अफवाज के साथ कुछ छोड़ चुकी है। सुल्तान कहते हैं, मंसूबा काम कर रहा है, दुश्मन हमसे खुले मैदान में मिलना चाहता है और हमारी नाम नेहात कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन जब वो पानी तक पहुंचेंगे तो अपने सामने आग का लश्कर देखेंगे। गुकबरो और बोरो का फर्ज अहम है, वो दोनों ही दुश्मन को हम तक पहुंचाएंगे। जंगल से लाडगाय की क़यादत में फौज आगे बढ़ रही होती है। चातियोन लाडगाय से कहता है, आपने फौज को किले से बाहर निकालकर दुरुस्त फैसला किया। तो लाडगाय कहता है, ये कुछ की अब तक की सबसे बड़ी फौज है चातियोन, हम जल्दी मरकजी फौज से मिलेंगे। लियो कहता है, जनाब पानी के जराए आगे हैं, पानी की फराहमी के लिए रुकना मुनासिब होगा। तो लाडगाय उसे कहता है, ठीक है ऐसा ही करो। हिनोक उनके सामने आता है और कहता है, मोहतरम बादशाह सलाहुद्दीन के भाई बोरो और उनके करीबी कमांडरों में से एक गुकबरो, उन्होंने पानी की जगह को सिर्फ चंद फौजियों के साथ घेर लिया है। चातियोन खुश होते हुए कहता है, अब आगे चंगुल में पहला शिकार शेरों के सामने गिर गया है, सलाहुद्दीन से पहले उसके भाई को उसके सामने फाड़ देते हैं मोहतरम बादशाह। तो लाडगाय कहता है, हमने जैसे कि तोको की थी वो पानी के जराए को घेर कर हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मरकजी फौज को फौरी तौर पे इसमत ले जाओ हिनोक। ये सुनते साथ ही हिनोक चला जाता है और लाडगाय कहता है, बोरो हमें सलाहुद्दीन के पास ले जाएगा। ये कहते साथ ही वो भी आगे कुछ में बालिन गुस्से से कहता है, उन्होंने शहर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की और गोया ये काफी ना था, तकरीबन पूरी फौज को दीवारों के बाहर गैर यकीनी सूरत हाल से भरी जमीन पर ले गए। सबीला कहती है, बादशाह ने अपना फैसला सुना दिया, अब हमें सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। इस समय मार्कोस वहाँ पे आता है और कहता है, बादशाह लाडगाय ने
तकरीबन पूरी फौज ले ली। बालिन कहता है मैं हर वो शख्स चाहता हूँ जो तलवार पकड़ सके। ये सुनते साथ ही मार्कोस चला जाता है। वो सब काफी ज्यादा परेशान होते हैं और सबीला पूछती है ये कैसे होगा। तो बालिन कहता है हमें हर इम्कान पे गौर करना चाहिए। जैसा कि आपके वालिद बादशाह मारलेक ने कहा था, इस शहर की हिफाजत अजीज खानदान वाले नहीं कुछ के लोग करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम एक तारीख साज जंग देखने वाले हैं। हितन का मैदान। सुल्तान अपने पूरे लव लश्कर के साथ मैदान जंग के बीचों बीच मौजूद होते हैं। इसलिए में गुकबरो और बोरो वहाँ पे आते हैं और कहते हैं काफिर मरकजी फौज के साथ मिल गए हैं और इस तरफ आ रहे हैं। सुल्तान कहते हैं आने दो उन्हें आने दो। करातेगन कहता है जब वो आएंगे और मलिक इज्जतुद्दीन, अमीर तुमान और दीगर को यहाँ पे देखेंगे तो वो अपना दिमाग खो बैठेंगे। कुछ देर के बाद लाड़गाई की क़यादत में बाज़ंतीनी फौज वहाँ पहुंचती है। तो अर्ज में फैली हुई दोनों अफवाज आमने सामने आ जाती हैं और मुसलमानों का लश्कर देखते हुए लाड़गाई कहता है ये क्या है, क्या मतलब है इसका। उन्होंने तो कहा था कि मुसलमानों ने सलाउद्दीन से मुंह मोड़ लिया है और वो मुत्तहिद नहीं हो सके। तो चातियोन कहता है लगता है कि विलियम को बुरी तरह से बेवकूफ बनाया गया था बादशाह सलामत। लाड़गाई अपनी फौज को देखते हुए कहता है हमारे पास अब भी उनसे ज्यादा स्पाई हैं। तो चातियोन कहता है बिल्कुल फतह हमारी होगी क्योंकि खुदा भी यही चाहता है। ये कहते और सुनते साथ ही वो तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और लाड़गाई तलवार लहराते हुए कहता है खुदा यही चाहता है। वो सब यही नारे बुलंद करते हैं। सामने सुल्तान अपनी फौज की जानिब मुड़ते हुए कहते हैं ए शाम, इराक, हलब, मोसल, कायरा, मराकेश, तलमसन, हुज्जाज, हुरान, उर्फा और यमन से आने वाले बहादुरों, ए उम्मत के वो बहादुरों जिनके तौर तरीके और ज़बानें मुख्तलिफ हैं लेकिन मशरिक से मगरिब तक, शमाल से जुनूब तक एक ही मजहब है। आज इस मैदान में उम्मत के बहादुर जवान शाना बिशाना खड़े हैं। आज हम यहाँ जमीनें लेने नहीं बल्कि उस शहर को जहाँ अजान की आवाज़ गिरजाघरों की घंटियों से खामोश कर दी गई हो, उस मुकद्दस शहर अल-कुद्स को तौहीद के परचम तले मुत्तहिद होकर हासिल करने आए हैं। ऐ मेरे भाइयों, हम सब एक ही किबले की तरफ झुकते हैं। हम सब एक ही सरजमीन पर सजदा करते हैं और अब हमारी तलवारें एक ही दुश्मन के खात्मे के लिए उठेंगी। अगर तुम्हारे दिलों में नफरत है तो उसे तर्क कर दो क्योंकि कुछ किसी एक शख्स, फिरके या किसी एक कौम का नहीं बल्कि ये पूरी उम्मत का मरकज है। अब जमीन से सर उठाने का वक्त आ गया है। अब इस सरजमीन पर सजदा करेंगे। कुछ की तरफ चलो, तुम्हारे दिल तुम्हारी तलवारों से तेज हो। वो दिल जो कुछ के इश्क में जल रहे हैं, अल्लाह का नाम लेकर चलो। फिर तलवार बेनियाम करते हैं और लहराते हुए कहते हैं अल्लाहु अकबर। ये सुनते साथ ही पूरे का पूरा लश्कर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करता है। बाकी सबके साथ साथ करातेगन भी पहली बार अल्लाहु अकबर के नारे लगाता है। फिर अगले लम्हे गुमसान का रंग पड़ता है और हितन के मैदान में दोनों अतराफ की फौजें आपस में टकरा जाती हैं। खून की छींटे हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। चातियों का वैश्यपन आखिरी दर्जे को छू रहा होता है। सुल्तान का गैज़ व गज़ब भी कम नहीं होता। उनकी तलवार जिस भी तरफ घूमती है काफी ढेर होता है। जिहाद का जज्बा एक एक मुसलमान को कई कई काफरों पे हावी कर देता है। बोरो की तलवार खून उगल रही होती है और वो इंतकाम की आग में जलते हुए काफरों को नीस्त नाबूद कर रहा होता है। गुकबरो भी फुर्ती से काफरों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। बोजो के तीर और करातेगन की तलवार भी काफरों के लिए मौत का पैगाम बन जाते हैं। एसिस की दो तलवारें जिस भी तरफ जाती हैं एक साथ कई कई लाशें गिराती हैं। सुल्तान के साथी कराकोश और इब्राहिम भी काफरों को पटकते ही चले जाते हैं। बाज़ंतीनी कमांडर हिनोक और लियो भी खूब तलवार चलाते हैं। मलिक इज्जतुद्दीन भी इस लड़ाई में सुल्तान का भरपूर साथ देता है। सबकी नजरें एक ही मंजिल पर होती हैं और वो है कुछ में मारिया अपनी खादमा के पास आती है और उससे कहती है तैयार हो जाओ एला, हम जा रहे हैं। एला पूछती है मोहतरमा हम कहाँ जा रहे हैं। मारिया कहती है हम घर जा रहे हैं। मैंने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ कभी मेरा घर नहीं बन पाया और अब कुछ ने अपने बाजू खोल दिए हैं और ये सलाउद्दीन का इंतजार कर रहा है। क्या तुम देख नहीं पा रही? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैदानी जंग में सुल्तान काफरों पे गजब डाल रहे होते हैं। हर तरफ खून की बूंदें गिर रही होती हैं। बोरो ने अपने इर्द गिर्द लाशों का अंबार लगाया होता है मगर उसकी आग ठंडी नहीं होती और वो मजीद की लाशें गिराता ही चला जाता है। गुकबरो भी एक साथ कई काफरों का मुकाबला कर रहा होता है। एक काफिर उसे जमीन पे गिराने में कामयाब हो जाता है मगर गुकबरो पलटकर उस पर ही मुक्के बरसा देता है। लाड़गाई हिनोक और अपने दस्ते के साथ एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है और शिकस्त यकीनी देखते हुए कहता है लियो तुम यहाँ मेरे मुआवजों के साथ रहो, मैं मैदानी जंग से जा रहा हूँ। लियो कहता है मेरे बादशाह अगर आप अपने सिपाहियों को छोड़ देंगे, अगर बादशाह चला जाएगा तो लाड़गाई उसे दबोचते हुए कहता है मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, जो मैं कहता हूँ वो करो, यहीं पे रहो और लड़ते रहो। ये कहते साथ ही लाड़गाई फौज छोड़कर मैदानी जंग से फरार हो जाता है। तो लियो गुस्से से कहता है हम एक ऐसे बादशाह के लिए कुर्बान होंगे जो अपनी जान बचाने के लिए अपने सिपाहियों को दुश्मन के आगे फेंक रहा है। लानतो तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ हमले के लिए आगे बढ़ जाता है। लाड़गाई को भागता हुआ देखकर करातेगन बुलंद आवाज से कहता है बादशाह भाग गया है, बादशाह भाग गया है। तो गुकबरो से कहता है चलो उसके पीछे जाते हैं। ये कहते सुनते साथ ही वो सब उसके पीछे भाग पड़ते हैं। मैदानी जंग में मर्दे कलंदर मर्दे मैदान सुल्तान मुसलसल काफरों की लाश पे लाश गिराते ही चले जाते हैं और अपने जांबाजों का हौसला बुलंद करते हैं। मलिक इज्जतुद्दीन और अमीर तोमान भी सुल्तान का खूब साथ देते हैं। हर तरफ काफरों की लाशें गिरती चली जाती हैं। अल्लाहु अकबर के नारे मैदानी जंग में गूंज रहे होते हैं। बादशाह के भाग जाने के बावजूद लियो हिनोक और चातियोन मुजाहमत जारी रखते हैं। तो राब आगे बढ़कर हिनोक पे हमलावर होता है और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है मगर इससे पहले कि हिनोक मरता बदबख्त काफिर पीछे से नेजा तुराब के पेड़ से आर पार कर देता है। ये देखकर हिनोक एकदम से उठता है और तलवार उसके सीने से बाहर निकाल देता है। तुराब जमीन पे गिरता है और अपने भाई की तरह कुछ के लिए जामे शहादत पाता है। बोरो इस बात से बिल्कुल ना इन लड़ाई जारी रखता है मगर लड़ते लड़ते उसकी बाजू जख्मी हो जाती है और वो देखता है कि काफिर चातियोन मुसलसल उसके मुसलमान भाइयों को शहीद कर रहा है। ये देखकर उसका खून खोल उठता है। वो अपनी जानिब बढ़ने वाले नेज़ेबाज को काट डालता है। चातियोन बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और रास्ते में आने वाले तमाम मुसलमानों को शहीद कर देता है। फिर बोरो को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। इधर सुल्तान लड़ते हुए नेजा हिनोक की जानिब दे मारते हैं जो उसके ढाल को चीरता हुआ उसके जिस्म से आर पार हो जाता है। खून उसके मुंह से उगल पड़ता है और इस तरह जालिम हिनोक भी अपने अंजाम को जा पहुंचता है। फिर सुल्तान खड़े होकर मैदानी जंग की सूरत हाल को गौर से देखते हैं। सुल्तान के गिर्द उनके जांबाज बड़ी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। एक जान मुसलमानों के सामने कोई
कोई भी काफिर आज टिक नहीं पाता। मुख्तलिफ जबानों और मुख्तलिफ कौमों के मुसलमान एक जान होकर लड़ते हैं। करीब ही में चातियोन और बोरो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। कराकोश भी काफिर को काट रहा होता है। बोरो पर काफिर सिपाही भी मुसलसल वार कर रहे होते हैं। वो कभी उनसे निपटता है और कभी चातियोन से, और इसी अवस्था में एक बजंतीनी सिपाही उसे पीछे से जख्मी कर देता है। ये देखकर कराकोश चिल्ला उठता है। बोरो पलटता है और उस काफिर को भी अब्दी नींद सुला देता है, मगर जैसे ही वापस चातियोन की जानिब मुड़ता है उसकी तलवार बोरो के सीने में होती है। ये देखकर सुल्तान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बुलंद आवाज से बोरो को बुलाते हैं। बोरो के मुंह से खून बह रहा होता है, मगर वो चातियोन से कहता है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम हार जाओगे। हमारे जलाली कहर की आतिश तुम्हें जला देगी और तुम हार जाओगे। ये सुनते साथ ही चातियोन पूरी तलवार उसके सीने से आर पार कर देता है और सुल्तान के खानदान का एक और फर्द उसके हाथों मारा जाता है। ये देखकर सुल्तान काफिर को काटते हुए चातियोन की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं। बोरो जमीन पे गिरता है और जामे शहादत मैदानी जंग से भागने के बाद बादशाह लड़गई अपने घोड़े को भगा रहा होता है और खौफ के मारे वो मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है, मगर एक मुकाम पे पहुंचते साथ ही गोगबोरो, करातिगन और इब्राहिम उसे घेर लेते हैं। वो सब बहुत गुस्से में उसे देखते ही चले जाते हैं। अगले मंजर में हितैन की जंग सुलीबी शिकस्त और मुसलमानों की फतह के साथ इख्तिताम को पहुंचती है। लड़गई और चातियोन सुल्तान के कैदी होते हैं। लड़गई चातियोन से कहता है, मुझे उसी दिन तुम्हारी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी। अगर तुमने अमन तोड़ने की कीमत अदा की होती तो आज हम यहाँ ना होते। तो चातियोन से कहता है, तख्त पर तुम्हें विराजमान थे लड़गई, और ताज भी तुम्हारे सर पर था। तुम्हें मुझे फांसी दे देनी चाहिए थी, मगर तुम्हें तो रस्सी की जरूरत भी नहीं है। तुम तो तकिए से भी मार सकते हो। यह सुनकर लड़गई चातियोन की जानिब देखता है तो चातियोन से कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुमने बादशाह बाल्डोन को कैसे मारा मैं जानता हूँ। लड़गई मैं और तुम एक ही जैसे हैं, हमें तो बस फर्क है हिम्मत और बुजदिली का। फिर चातियोन बुजुर्ग से कहता है, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दो। बुजुर्ग के जवाब न देने पर वो कहता है, तीरंदाज एक गिलास पानी दो। तो लड़गई उसे कहता है, ये मुसलमानों की रिवायत है, वो सिर्फ उन कैदियों को पानी देते हैं जिनकी जान बख्शने वाले हों। जवाबन चातियोन कहता है, तो फिर हमें पानी सिर्फ सलाहुद्दीन ही दे सकता है। एक हकीकी बादशाह तो ऐसा ही होता है। उधर तुराब और बोरो की मैयत के पास उनके साथी बहुत गमगीन खड़े होते हैं। सबकी आंखें भर आती हैं। गोगबोरो बोरो के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, मेरे भाई, मेरे हमदर्द, तुम हमारे जंगली बेड़िए थे, मगर इन सब लोगों से बेहतर थे। कराकोश कहता है, अब तो बस तुमसे आखिरत में मुलाकात की उम्मीद है। हमारी रिफाकत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं थी, हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। इस लम्हे सुल्तान वहाँ पे आते हैं और बोरो के सर पे हाथ रखते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब बोरो उनकी मदद के लिए कायरा के पास पहुंचा था और उसने कहा था, मैं उस अल्लाह की कसम खाता हूँ जिसने मूसा को हारून से और ईसा को यहिया से मदद दी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तन्हा नहीं है, मैं नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा बोरो हूँ। इस ख्याल के बाद सुल्तान कहते हैं, तुमने वादा निभाया, तुमने अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे अल्लाह तो शाहिद है, ना ये मेरे आगे चला ना मेरे पीछे, ये हमेशा मेरे साथ रहा, हर फैसले में, हर सफर में, हर खामोशी में। फिर तुराब के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन्हें हमने यहाँ दफन किया उनके सदके अगली कब्रों को कुछ की मट्टी नसीब फरमा। करातिगन कहता है, उस गिदड़ का खून बहाकर हमारे दिलों को ठंडा कर दें, अब आपके अहद को पूरा करने का वक्त आ गया है। यह सुनते साथ ही सुल्तान गुस्से में आगे बढ़ जाते हैं। बाकी सबके सब उनके पीछे जाते हैं। गोगबोरो और कराकोश आखिरी बार बोरो के माथे पर प्यार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सुल्तान वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे लड़गई और चातियोन को रखा गया होता है और उनसे कहते हैं, तुम वो नस्ल हो जिसके ताज खून से धोए गए और झूठी कस्मों से सजाए गए। हर बार तुमने कहा खुदा चाहता है और खून बहाया। तुमने पैगंबरों के शहर कुछ को अपनी खबासत से बर्बाद कर दिया। इस्लाम की तौहीन के लिए मस्जिद अल-अक्सा को अस्तबल में बदल दिया। कायरा, दमिश्क, हलब और मौसल में फितना फैलाकर तुमने भाई को भाई के खिलाफ कर दिया। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सिपाहियों को भी कई बार मारने की कोशिश की। तुमने मुसलमानों का खून बहाया और आखिरकार तुमने हाजियों के काफिले पर हमला किया और इबादत पर जाने वालों को कत्ल कर दिया। लड़गई कहता है, हमने जो कुछ किया खासतौर पर जिसका तुमने अभी जिक्र किया, हम उस पर तुम्हारी रहम दिली के तलबगार हैं सुल्तान सलाहुद्दीन। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैंने तुम्हें वो रहम खुद तलाश करने का मौका दिया था जिसके तुम अब भीख मांग रहे हो, लेकिन तुम मेरे उस साथी की लाश लाई जिसे मैंने बतौर कासिद भेजा था। अब वक्त आ गया है, यह है इस्लाम की फौज और ये हो तुम कैदी। ये कहते साथ ही सुल्तान पानी लड़गई की जानिब बढ़ा देते हैं। लड़गई जल्दी जल्दी पानी पीता है और उसके बाद पानी चातियोन की जानिब बढ़ाता है। चातियोन पानी पीने ही लगता है कि सुल्तान हाथ मार के पानी गिरा देते हैं। नाज़रीन, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का अंदाज था कि वो जिसे जिंदा छोड़ देना चाहते थे उसे पानी पिला देते थे और जिसे कत्ल करना चाहते थे उसे पानी नहीं पिलाते थे। सुल्तान चातियोन से कहते हैं, मैंने पानी इसे दिया, तुम्हें नहीं। तुम तो वो नापाक हो जिसने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और बेगुनाहों को कत्ल किया। तुम इंसान नहीं, कोई शैतानी मखलूक हो जिसका कत्ल वाजिब है। तुम ना पानी के एक कतरे के हकदार हो और ना ही इस सांस के। मेरे पास एक हलफ है चातियोन और मैं अपना हलफ कभी नहीं तोड़ता। ये कहते साथ ही सुल्तान बुजुर्ग के आगे से खंजर उठाते हैं और चातियोन का गला काट डालते हैं। खून की छींटें लड़गई के मुंह पे जा लगती हैं। सब एक गहरी सांस लेते हैं। चातियोन के मुंह से भी खून निकल पड़ता है। वो खड़े रहने की कोशिश करते करते गिर जाता है। जालिम, जाबिर, बदबख्त, शैतान, सुर्ख शैतान। चातियोन अपने अंजाम को इस तरह पहुंचता है। सुल्तान लड़गई से कहते हैं, अगर तुम यूं ही इत्तेफाक से बादशाह ना बने होते तो तुम्हारा अंजाम भी इस खबीस जैसा होता। लड़गई पूछता है, अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? सुल्तान उसे कोई जवाब नहीं देते। कुछ के तख्त पर बैठी सबीला परेशान होते हुए कहती है, इतनी देर क्यों लग रही है? अब तक खबर आ जानी चाहिए थी। तो मारिया कहती है, बात ये नहीं कि खबर कब तक आएगी, बात यह है कि खबर कैसी होगी मलका। विलियम कहता है, मुझे यकीन है कि यह फतह की खबर होगी। इसलिए में एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है, जनाब शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दे, वो आ रहे हैं। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और विलियम कहता है, नहीं नहीं, हम इतनी बड़ी फौज के साथ कैसे हार सकते हैं? तो सिपाही कहता है, उनके पास ज्यादा सिपाही थे, मौसल और हलब की अफवाज उनके साथ मिल गई। चातियोन मारा गया है और बादशाह के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। यह सुनकर सब मजीद परेशान हो जाते हैं और बालिन मार्कोस से कहता है, मार्कोस सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दो। बाज़ंतीनी सल्तनत की फौज अब भी हमारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस शहर का दिफा करेंगे। करारगाह में सुल्तान लड़गई को लेकर खेमे के बाहर आते हैं और कहते हैं, मुझे लगा तुम उन फौजियों को याद कर रहे हो जिन्हें तुम मैदानी जंग में छोड़कर भाग गए थे। अगर किसी
سپہ سالار کو اپنی فوجیوں کو چھوڑنے کی سزا دی جائے تو وہ حق انہیں فوجیوں کو حاصل ہے، سپاہیوں اسے لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایچز اور ابراہیم لاڑگائی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اندر پنجرے میں لیو اور اس کے ساتھی قید ہوتے ہیں۔ لاڑگائی کو بھی اسی پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیو غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اچھا تو ہاں بادشاہ، ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے درمیان ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے فوجیوں کو چارے کے طور پر استعمال کرنا بھی کرامت ثابت نہ ہوا۔ لاڑگائی ڈرتے ہوئے کہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا بادشاہ ہوں، کچھ کا بادشاہ۔ سپاہی آہستہ آہستہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے جاتے ہیں۔ لیو اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، بادشاہ نہیں بلکہ ایک بزدل کھڑا ہے جس نے موت کے خوف سے اپنے فوجی تنہا چھوڑ دیے۔ کچھ میں ولیم پریشان ہوتے ہوئے تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے، 1 صدی قبل ہم نے خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے سفر شروع کیا تھا۔ شاید ہمیں یہ جرات کرنے سے پہلے خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ ہم پیچھے صرف درد و آزاری چھوڑ کر جائیں گے، اور خدا نے ہم سے انتقام لیا ہمیں ہتین میں اکیلا چھوڑ کر۔ صلاح الدین اور اس کی فوج ابھی کچھ نہیں پہنچی۔ یہ خاموش انتظار اس قدر اذیت ناک ہے کہ ہمیں بغیر لڑے ہی مار ڈالے گا۔ جب مسلم فوج ہمارے دروازے پر آئے گی تو ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ شکر ہے کہ ہمارے پاس کچھ میں اب بھی وفادار محافظ موجود ہیں۔ ادھر بالین کچھ کی بلندی پر کھڑے ہو کر باہر کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سبیلا بالین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بالین تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کب حملہ کریں گے؟ جواباً بالین کہتا ہے، ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں زیادہ وقت لگے گا۔ دیکھو سبیلا، اب تم ایک ملکہ ہو، سب کی نظریں اب تم پر ہوں گی، تمہیں ہمیشہ سر بلند رہنا ہوگا، تم اپنا ایمان نہیں کھو گی، تم ہی وہ آخری امید ہو جو لوگوں کو حوصلہ دے سکتی ہو۔ اس لیے میں اسلام کا جھنڈا اٹھائے گگبورو ان کے سامنے پہنچتا ہے۔ سبیلا بالین سے پوچھتی ہے، کیا وہاں تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ گھوڑا رکتے ساتھ ہی بورو بلند آواز سے کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالین سبیلا سے کہتا ہے، سبیلا وہ آ چکے ہیں، صلاح الدین کی فوج کے لے کے این باہر ہے۔ سبیلا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، اے عیسیٰ مسیح، کچھ کی حفاظت فرما۔ بالین کہتا ہے، محاصرہ شروع ہو چکا ہے، تمہیں فوراً محل میں داخل ہونا ہوگا، چلو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سبیلا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گگبورو کے واپس پلٹتے ساتھ ہی مشعلیں روشن ہو جاتی ہیں اور سامنے ایک بڑے لشکر کو دیکھتے ہوئے بالین کہتا ہے، وہ آ رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالین آگے بڑھ جا۔ رات کے وقت کچھ میں لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بالین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو، مگر اگلے لمحے توپ کا ایک گولہ ان کے پاس آ لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب زمین پہ جا گرتے ہیں۔ اندر تاریخ لکھنے والا ولیم بھی رک جاتا ہے۔ سلطان کی جانب سے ایک کے بعد ایک گولہ کچھ کی جانب پھینکا جا رہا ہوتا ہے جو کچھ کی دیواروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ سلطان بھی پاس ہی کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ پر ایک ساتھ کہیں گولے پھینکے جاتے ہیں اور جہاں جہاں گولے گرتے ہیں وہاں پہ بہت سے بازنطینی سپاہی اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ کچھ کا نظام درم برم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بالین اب بھی کانوں پہ ہاتھ رکھے ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے۔ شدید گولہ باری جاری ہوتی ہے، بہت سے سپاہی جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور زخمی اپنی جان بچانے کے لیے اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں۔ بالین کھڑے ہو کر کہتا ہے، سب لوگ پناہگاہوں کی طرف جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالین خود بھی دوڑ لگا دیتا ہے تو اندر سے باہر کی جانب بھاگنے والی سبیلا اس کے ساتھ آ کر لپٹ جاتی ہے۔ بالین اسے لے کر ایک طرف ہوتا ہی ہے کہ ایک اور زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس سے شدید نقصان پہنچتا ہے۔ بالین سبیلا سے کہتا ہے، تم جاؤ جلدی کرو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سبیلا چلی جاتی ہے اور بالین آگے بڑھ کر منجنیقوں کے ذریعے پتھر پھینکنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف سے مسلسل کچھ پر گولے برسائے جا رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کافروں کے لیے ایک سخت ترین رات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف قاضی فاضل لکھ رہے ہوتے ہیں، سن 583 ہجری رجب کے مہینے کی 16 تاریخ محاصرے کا دوسرا دن، اللہ کی مدد سے ہمارے سلطان ابو المظفر الملک الناصر صلاح الدین ایوبی کچھ کی فصیلوں تک پہنچ چکے ہیں۔ شہر میں موجود سپاہیوں کی تعداد کا اندازہ لگایا گیا، ان کے ٹھکانوں کو باریکی سے درج کر لیا گیا۔ منجنیقوں کو ماہرین کے ہاتھوں فصیل کی کمزور ترین مقامات پہ نصب کیا گیا۔ سرنگ کھودنے والے خاموشی سے فصیلوں کے سائے میں کام کر رہے ہیں، جیسے پتھروں کے نیچے چھپا خوف تلاش کر رہے ہوں، اور ہمارا سلطان ایسے آگے بڑھ رہا ہے جیسے وہ نماز کی طرف بڑھ رہا ہو، نہ کہ کسی میدان جنگ میں۔ اس لیے میں بے آ کر کہتا ہے، ہمارے سلطان سب کو خیمے میں بلا رہے ہیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں، میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اگلے منظر میں گگبورو سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان، ہم نے منجنیقوں سے فصیلوں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن حتمی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں مزید حملے درکار ہوں گے۔ تو سلطان اسے کہتے ہیں، سرنگ کی کھدائی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کراکوش کہتا ہے، ہم فصیل کی بنیاد کے قریب پہنچ چکے ہیں، جیسے ہی ہم سفارہ ہوں گے ہم ایک زوردار دھماکہ کریں گے۔ سلطان کہتے ہیں، بے گناہوں کو نقصان سے بچانے کے لیے میں پہلے بالین کو مذاکرات کی دعوت دوں گا، مجھے امید ہے کہ شہر کو مزید نقصان پہنچائے بغیر اسے حل کر لیا جائے گا۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں، میں فوراً خط تیار کرتا ہوں اور جو کچھ درکار ہوگا وہ انجام دوں گا میرے سلطان۔ گگبورو سلطان سے کہتا ہے، سلطان ایک اور بات بھی ہے، یہ سورج ہماری آنکھوں کو تلوار کی طرح چیرتا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے خیمے غلط جگہ لگائے ہیں؟ تو گگبورو کہتا ہے، نہیں سلطان، ہم نے بالکل آپ کے حکم کے مطابق کمزور ترین دیواروں کے سامنے خیموں کا قیام کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ سورج اسی سمت سے طلوع ہوگا، مگر ہم نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ یہ اتنی بڑی مشکل پیدا کرے گا۔ سلطان کہتے ہیں، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس لیے میں ملک عزت الدین اور امیر تمان وہاں پہ آتے ہیں۔ عزت الدین پوچھتا ہے، سلطان حضرت، کیا آپ نے ہماری درخواست کے بارے میں سوچا؟ تو سلطان کہتے ہیں، مجھے تمہاری اس معاملے پر ضد سمجھ نہیں آتی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو ملک عزت الدین کہتا ہے، سلطان حضرت ذرا غور سے سوچیں، اگر آپ انتقامی کارروائیوں کو روکتے ہیں تو؟ سلطان کہتے ہیں، میں نے بعد میں کہا بعد میں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عزت الدین چلا جاتا ہے۔ ادھر بالین سلطان کی جانب سے بھیجا ہوا خط پڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، صلاح الدین مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو سبیلا اسے کہتی ہے، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالین۔ تو بالین کہتا ہے، میں کچھ کا محافظ ہوں، یہ کرنا میرا فرض ہے۔ ولیم پوچھتا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ صلاح الدین کیا مانگے گا، تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ بالین کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل سلطان سے پوچھتے ہیں، میرے سلطان کیا آپ کو لگتا ہے کہ بالین ہتھیار ڈال دے گا؟ تو سلطان کہتے ہیں، بالین وہ شخص نہیں رہا جو پہلے تھا، مگر وہ ہر قدم عقل سے سوچ کر اٹھاتا ہے۔ اگر وہ لالچ اور ضد کا شکار نہ ہوا، وہ کسی ناممکن چیز کے لیے معصوم جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ اس لیے میں بالین مارکوس کے ساتھ وہاں پہ آتا ہے اور سلطان کے اشارے پر ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر سلطان سے کہتا ہے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو سلطان اس سے کہتے ہیں، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ واپس لوں گا، یاد ہے؟ جواباً بالین کہتا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کبھی کچھ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ سلطان کہتے ہیں، شہر ابھی بھی قائم ہے، لیکن دیواروں کے پیچھے
नीचे बसने वाले लोग दिन ब दिन उम्मीद खो रहे हैं बालेन। तुमने अपनी ज्यादातर फौज हितेन में गंवा दी, तुम्हारे लिए शहर का दिफा करना नामुमकिन है। बालेन पूछता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए कुछ के दरवाजे खोल दूं और तुम्हारे रास्ते में अतर छिड़कूं? सुल्तान कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया, मैं नहीं चाहता कि मासूम लोगों को कोई नुकसान पहुंचे और इस मुकद्दस शहर कुछ को भी। ऐसे ख्वाब के पीछे ना दौड़ो जो आखिरकार तबाही लाएगा और जानों का नुकसान करेगा। शहर को अमन के साथ मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की हिफाजत करूंगा। बालेन हंसते हुए कहता है सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन, मैं भी जानता हूँ कि शहर में 3000 मुसलमान कैदी हैं। मुमकिन है कि तुम्हारी रहमदिली और अमन से हथियार डालने की ये पेशकश मेरे लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने उन कैदियों के लिए है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं तुम्हें अब भी लगता है कि हम एक जैसे हैं और तुम्हें तो ये भी इल्म नहीं कि शहर में कितने मुसलमान कैदी हैं। 3000 नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इससे कहीं ज्यादा हैं। मगर जितना वो आजादी के करीब हैं, अगर तुम इस जिद को तर्क नहीं करते तो तुम कैद के उतने ही करीब हो जाओगे। मैं अपनी पेशकश नहीं दोहराऊंगा बालेन। अगर तुमने शहर को अमन से ना सौंपा और मैंने उसे तलवार के जोर पर लिया तो मैं वही करूंगा जो तुम लोगों ने 88 बरस पहले किया था और मैं उसी शान से शहर में दाखिल हूंगा। क्या तुम ये चाहोगे बालेन? तो बालेन कहता है जरा अपनी बात को एक और जाविये से सोचो। अगर हालात मुख्तलिफ होते और हम इस वक्त दमिश्क में होते और मैं तुमसे कहता कि बगैर जंग के शहर मेरे हवाले करो तो तुम्हारा क्या जवाब होता? शहर तुम्हारे सामने है सलाहुद्दीन, अपनी पूरी ताकत के साथ आओ। मगर एक बात जान लो, कुछ का हर फर्द ख्वाह वो तलवार उठा सकता हो या नहीं अपने शहर का दिफा करेगा, क्योंकि बगैर लड़े अपनी सरजमीन दुश्मन को देने का पछतावा ऐसा है जो किसी तलवार के गहरे जख्म से भी ज्यादा तकलीफ देता है। हम इसलिए तुमसे या तुम्हारे अजीम लश्कर से बिल्कुल खौफजदा नहीं है। ये कहते साथ ही बालेन चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त मारिया अपना सामान इकट्ठा कर रही होती है, इसलिए में वहाँ पे बालेन आता है और ये मंजर देखकर पूछता है ये कैसी तैयारी है? तो मारिया कहती है बालेन जैसा कि तुम देख रहे हो मैं जा रही हूँ। बालेन पूछता है अब ऐसे वक्त में हमें कुछ के लिए एक साथ होना चाहिए, इस तरह जाने का क्या मतलब है मारिया? तो मारिया कहती है शहनशाह ने बजंती सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दे दिया है, ये सब खत्म हो चुका है बालेन, सब जानते हैं ये हकीकत है, तुम्हें भी इसे कबूल करना होगा। ये सुनते साथ ही बालेन गुस्से में बैठ जाता है। मारिया उसके पास बैठते हुए कहती है बालेन मेरे साथ चलो, हमें अलग होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ दुनिया में नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो बालेन उसे कहता है मुझे तुम ये पेशकश कैसे कर सकती हो? ये शायद मेरी तकदीर है, मैं कुछ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मारिया उसे कहती है क्या तुम देख नहीं रहे बालेन, कुछ अब सलाहुद्दीन की सल्तनत है। ये कहते साथ ही मारिया उठती है, बालेन को एक प्यार करती है और चल पड़ती है। उधर विलियम मार्कोस से कहता है मार्कोस आदि बजंतीनी फौज को मगरबी दरवाजे की जानिब रवाना करो ताकि दुश्मन के उन सिपाहियों का सख्ती से सामना किया जाए जो शहर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वहाँ आने वाला बालेन कहता है अब इसकी जरूरत नहीं रही, बजंतीनी फौजी कुछ छोड़कर जा रहे हैं। सबीला हैरानगी से कहती है ये कैसे हो सकता है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बालेन कहता है बादशाह के अहकामात हैं, मारिया भी उनके साथ जा चुकी है, ऐसा लगता है कि कुछ की मुजामत पर यकीन रखने वालों की तादाद रोज बरोज कम होती जा रही है। फिर मार्कोस से कहता है मार्कोस जो भी लड़ने के काबिल हो उसे सुबह सवेरे चौक में जमा किया जाए। मार्कोस चला जाता है और बालेन मजीद कहता है हमें अगर अपनी तलवारें और नेज़े इस्तेमाल करने के लिए फौजी नहीं मिलते तो हम ये हथियार उनके स्पुर्द कर देंगे जो वाकई उनके हकदार होंगे। फिर सबीला को परेशान देखते हुए कहता है फिक्र मत करें मेरी मलका, जो सबसे ज्यादा वफादार हैं वो शहर का दिफा करेंगे। सुल्तान के पड़ाव में इज्जतुद्दीन सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान मुहासरा काफी ज्यादा सुस्त है, आप अब भी हमारे मुतालबे को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने लोगों का दिफा कर रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं ये ना कैरिक है और ना ही एबलिन, क्योंकि तुम मुझसे अंबिया के शहर कुछ को बेदर्दी से तबाह करने की तवक्को रखते हो। अमीर तोमान कहता है मंजनिकू को हुक्म दें कि सिवाय मुकद्दस मुकामात के हर मुकाम को तबाह कर दें और जब हम शहर में दाखिल होंगे तो हम सबको मार डालेंगे जैसा कि पहले उन्होंने किया था। मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ, आपको फैसला करने की जरूरत है। सुल्तान पूछते हैं बेगुनाहों को कत्ल करके तुम्हें क्या हासिल होगा? ये इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं है। मगर इज्जतुद्दीन कहता है अगर हमने इस आफत से पूरी तरह छुटकारा हासिल ना किया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने आपके खानदान को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, ये नाकाबिले यकीन है कि आप अब भी उन पर इतने मेहरबान हैं। अमीर तोमान कहता है जालिमों को माफ करना मजलूमों की तौहीन होगी। तो सुल्तान कहते हैं जिसने जुल्म किया वो अपने अंजाम को जा पहुंचे, जो भी मुजामत करेगा वो भी सजा पाएगा। फिर भी जब तक मैं फौज की क़यादत करता रहूंगा मैं किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं होने दूंगा। इज्जतुद्दीन कहता है आप जिन्हें मासूम कहते हैं उन्होंने चातियों का प्रतिपाक इस्तकबाल किया क्योंकि उसने हज के काफिले को कत्ल किया था, उन सब के रगों में एक ही खून दौड़ता है। तो सुल्तान कहते हैं अगर हम इंतकाम की आग में खून बहाएं तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? अमीर तुमान कहता है हम आपकी दावत तौहीद पर लब्बैक कहकर आए हैं, ये हमारी पुकार है। अगर आपने हमारी पुकार को नजरअंदाज किया जैसा कि हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं तो जान लीजिए हम अपने तौर पर मुहासरा जारी रखेंगे। सुल्तान उसे कहते हैं क्या तुम सिर्फ इसी वजह से कुछ के दरवाजे से वापस चले जाओगे? अमीर तुमान कहता है आप हमारा इत्तेहाद बरकरार रख सकते हैं, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम आपके साथ खड़े होंगे। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान कहते हैं ये मुतालबा और इसरार तुम्हें ज़ेब नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें नजरअंदाज करना भी पसंद नहीं करूंगा, मैं इस पर गौर करूंगा, वक्त आने पर हम दोबारा बात करेंगे। मलिक इज्जतुद्दीन कहता है मुझे उम्मीद है कि आपकी बेवक्त रहमदिली तौहीद के झंडे को मुतज़लज़ल नहीं करेगी। ये कहते साथ ही वो अमीर तुमान के साथ चला। उसमें बालेन बचे कुछ लोगों और सिपाहियों से कहता है जब मैं आपके चेहरों को देखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि आप कितने खौफजदा हैं। ये शर्म की बात नहीं है, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, मैं भी खौफजदा हूँ, मगर असल बात यह है कि हम अपने खौफ के बावजूद अपने शहर का दिफा करेंगे। हाँ मुझे इल्म है कि इन दीवारों के बाहर एक जबरदस्त लश्कर है जो हमारे शहर में दाखिल होने को तैयार है और हम यहाँ हैं। बादशाह, कमांडर, पादरी और यहाँ तक के फरिश्ते भी इस मुकद्दस शहर को छोड़ चुके हैं, हमारे लिए सिर्फ हम बाकी बचे हैं। मैं तुमसे फतह का वादा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दे सकता हूँ जो इस मुकद्दस शहर के दिफा का शर्फ है, कुछ समय से आखिरी के गिरने से पहले नहीं गिरेगा। ये कहते साथ ही बालेन तलवार बेनियाम करता है तो सब लोग एक नारा बुलंद करते हैं खुदा ऐसा ही चाहता है, खुदा ऐसा ही चाहता है। ये मंजर देखकर सबीला और विलियम बहुत खुश होते हैं। उधर कारगाह में सुल्तान सोच में पड़े होते हैं, इसलिए काजी फाजिल वहाँ पे आते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं आओ फाजिल आओ, हो सकता है कि तुम बंदी हुई रस्सी के सिरे तलाश करने में मेरी मदद करो। अमीर तोमान और मलिक इज्जतुद्दीन का मुतालबा। तो काजी फाजिल कहते हैं इंसाफ का भी
खींची हुई तलवार से और कभी छोड़ी हुई तलवार से होता है, लेकिन उनके लिए समझना मुश्किल होगा मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं अगर मैं वो करूँ जो वो चाहते हैं तो जुल्म का रंग तो बदल जाएगा, लेकिन जुल्म वही जुल्म ही रहेगा। लेकिन हमारा काम जुल्म का रंग बदलना नहीं है, बल्कि जुल्म के वजूद को तबाह करना है। बच्चे की आंख का एक आंसू दीवार के 1000 पत्थरों से भारी होता है, लेकिन मैं उन्हें ये कैसे समझाऊं। काजी फाजिल कहते हैं मेरे सुल्तान ऐसा फैसला दें कि तारीख के तमाम कलम उसका तस्करा तहसीन के साथ करें। हम जितने भी इम्तिहानात से गुजरे हैं मैं यकीनी तौर पर उस पर यकीन रखता हूँ। आपके अदल और रहमत का साया कुछ की दीवारों से ज्यादा बड़ा होगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ में सिपाही लोगों में हथियार तकसीम कर रहे होते हैं। ये सारा मंजर देखने वाला बालेन मार्कोस से कहता है हमारे पास हथियार काफी नहीं है, हमें कुछ तलाश करने की जरूरत है। जिनके पास तलवारें या नेज़े नहीं है वो किसानों की दरांती और कदालें इस्तेमाल करेंगे। तो मार्कोस कहता है सबसे बड़ा मसला तीरों की तादाद का है, तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अगर हम साख्त बना भी लें तो हमारे पास नोक बनाने के लिए लोहा नहीं है। तो बालेन कहता है महल और चर्च की सारी चांदी पिघला दो। कुछ से दुश्मनों को दूर रखने के लिए तीरों की जरूरत है, ना कि चांदी की मोमबत्तियों की। ये सुनते साथ ही मार्कोस आगे बढ़ जाता है। इधर काजी फाजिल लिख रहे होते हैं आज तारीख 21 रजब 583 हिजरी 30 सितंबर 1187 मुहासरे का छठा दिन है। मंजनिकों से कुछ की दीवारों पे गोलाबारी हो रही है। दीवारों पर लगने वाले गोलों की आवाजें मुजाहिदों के दिल में उम्मीद और दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करती हैं। अल्लाह की मदद से फतह बहुत करीब है। कुछ में बाज़ंतीनी सिपाही गर्म तेल और तीर बरसा रहे होते हैं। दिफा की हर मुमकिन कोशिश की जा रही होती है। काजी फाजिल मजीद लिखते हैं शहर की दिफा की जिम्मेदारी लेने वाला बालेन बहादुर है, लेकिन शहर की दीवारें बालेन नहीं जानता कि शहर के चारों तरफ की दीवारें गोलों से नहीं बल्कि हमारे और कुछ के दरमियान आरजू और मोहब्बत से गिर जाएंगी। साथ ही बालेन बड़े बड़े गोले बरसा रहा होता है। हर तरह का दिफाई हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ से भी गोले बरस रहे होते हैं जिनकी वजह से बहुत जानी नुकसान होता है। सिपाहियों के साथ आम लोग भी मरते हैं। काजी फाजिल लिख रहे होते हैं सुल्तान सलाउद्दीन के हाथ से शिफा का मुंतजर एक जख्म। इधर विलियम भी लिख रहा होता है आज मुहासरे का 8वां दिन 23 रजब 2 अक्टूबर सलाउद्दीन घेरा तंग कर रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि बुलंदी पर मौजूद तीरंदाजों की लाशें गिरते ही चली जाती हैं। दरवाजे के पीछे बाज़ंतीनियों ने बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी की होती हैं और हथियार लिए सफ बसफ खड़े होते हैं। एक तरफ पूरा इस्लामी लश्कर और दूसरी तरफ चंद लोग दिफा में लगे होते हैं। विलियम मजीद लिखता है जैसे जैसे हम हार रहे हैं वैसे ही हमारी उम्मीद भी कम होती जा रही है। विलियम इतना ही लिखता है कि एक गोला उसके कमरे की छत को हिला डालता है। कुछ देर के बाद वो फिर लिखना जारी कर देता है हमारे दरमियान सिर्फ एक ही शख्स है जिसने हिम्मत नहीं खोई, उम्मीद नहीं खोई, और वो है बालेन। अंदर लोग डरे सहमे दीवारों के सहारे बैठे होते हैं। गोले उनके दाएं बाएं आगे पीछे गिर रहे होते हैं। किसी लम्हे बालेन वहाँ पे आता है। लोग उसे कहते हैं बराए मेहरबानी मदद करें मदद करें। खवातीन बहुत ज्यादा डरी सहमी बैठी होती हैं। बालेन उनसे कहता है मैं जानता हूँ कि आप बहुत थक चुके हैं, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्मीद तकरीबन खत्म हो गई है, लेकिन अगर हम मुजाहमत करेंगे तो जीत जाएंगे। एक खातून बालेन से कहती है खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे बहादुर सुरमा, हमें कभी छोड़कर मत जाना। तो बालेन उनसे कहता है मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। विलियम मजीद लिखता है और अजीम खुदावन ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा। बालेन आगे बढ़ता है तो गोला गिरने की वजह से लड़खड़ा जाता है। विलियम मजीद लिख रहा होता है हर बड़ी आफत एक बहादुर को जन्म देती है। खुदावंद का वादा आज बालेन में शक्ल इख्तियार कर चुका है। कुछ को इस्तेमाल करके अपनी शोहरत बढ़ाने वाले उधर शिफा खाने में जख्मियों का इलाज जारी होता है और वक्तन फवक्तन मजीद जख्मी लाए जा रहे होते हैं। सबीला बाकी तबीबों के साथ जख्मियों को इलाज करने में लगी होती है। विलियम लिख रहा होता है पीछे सिर्फ वही रह गए हैं जो वाकई कुछ से मोहब्बत करते हैं। जख्मियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर सबीला भी घबरा जाती है। बाहर सुल्तान के लश्कर की जबरदस्त गोलाबारी से दीवारें रेजा रेजा हो जाती हैं। काजी फाजिल लिख रहे होते हैं अल्लाह की मर्जी से जैतून के पहाड़ से असबात के दरवाजे पर हमारे सुल्तान का अचानक छापा सूरज के बावजूद कामयाब हुआ। लेकिन बालेन जिसने शहर में हर किसी को कुछ के लिए जंगजू करार दिया है हमारा मुहासा तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। अगरचे जिन लोगों ने कभी कसाब की छुरी भी नहीं पकड़ी थी उन लोगों के हमले की वजह से हमें निस्बतन नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारे नुकसान की बड़ी वजह सूरज था। नाज़रीन, हम देखते हैं कि सूरज पूरी आबोताब के साथ अय्यूबी सिपाहियों पे पड़ रहा होता है। सामने उन्हें दुश्मन दिखाई नहीं देते जिसकी वजह से उन्हें मजीद मुश्किलात होती हैं। तीरों की वजह से साथ साथ सिपाही भी शहीद हो रहे होते हैं। ये देखकर गुकबरो काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। काजी फाजिल मजीद लिखते हैं जैसा कि गुकबरो ने कहा हम दुश्मनों से नहीं बल्कि सूरज से टूट रहे हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और रात हो जाती है। करारगाह में सुल्तान का दीवान लगा होता है। एलिसा कहता है मेरे सुल्तान आपके हुक्म के मुताबिक सिपाहियों को खाना और पानी फराहम किया गया। हम जो कुछ लेकर आए हैं उसके मुताबिक अगर मुआवजा मजीद 3 माह तक जारी रहे तो हम संभाल सकते हैं। गुकबरो कहता है मेरे सुल्तान शहर की फसलों से आने वाले तीर, ये कहते साथ वो तीर सुल्तान को देता है। तीर देखते हुए सुल्तान कहते हैं ऐसा लगता है कि मुआवजा मजीद नहीं चलेगा। बालेन ने चांदी पिघलाना शुरू कर दी है। करातेगन कहता है लेकिन सुल्तान हमें एक मसला होगा। फिर इसलिए में गुकबरो से कहता है तुम कहो। चलो बोलो ना गुकबरो। अरे बोलो भी। गुकबरो नहीं बोलता तो करातेगन कहता है वो चांदी को पिघला रहे हैं लेकिन ये सूरज हमें पिघला देगा, हमारी आंखें कुछ नहीं देख सकती अगर हमने कोई हल तलाश नहीं किया। सुल्तान कहते हैं हम तलाश करेंगे करातेगन, और जब हम तलाश करेंगे तो किसी को मालूम नहीं होगा। कुछ में बालेन सबीला और विलियम से कहता है सूरज की सिमत उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। सबीला कहती है तो फिर कहो ना कि खुदा हमारे साथ है। जवाब में बालेन कहता है ये यकीनी है कि सूरज हमारे साथ है। विलियम ऐसा ही है ना? तो विलियम कहता है खुदावन तुझसे मोहब्बत करने वाले चढ़ते सूरज की तरह चमक जाएं। मगर विलियम साथ में काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। फिर अगले मंजर में विलियम लिख रहा होता है फिर आज की रात उन्होंने कोई तोप नहीं चलाई। हमने सारी रात दुआएं की और गीत गाई। हम उम्मीद के साथ खुदा तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ हमारी आवाज ही खुदा तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही थी। दीवारों के पीछे से आने वाली आवाज हमारी आवाज से भी ज्यादा खुदा के करीब महसूस हुई। हम देखते हैं कि कुछ के लोग सिपाही विलियम सबीला और बालेन चर्च में दुआ मांग रहे थे। विलियम मजीद लिखता है अब हमारे अंदर के सवाल के बजाय कि कुछ किसका होगा, ये सवाल था कि खुदा किसकी सुनेगा। शायद खुदा सिर्फ उनकी सुनता है जो सजदे के लिए झुकते हैं, और अफसोस के हम झुकने का तरीका बहुत पहले ही भूल चुके थे। उधर दुआएं मांगी जा रही थी और इधर सुल्तान के लश्कर में नारे बुलंद होते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुल्तान समेत पूरे का पूरा लश्कर बस यही कलमात दोहराता जाता है और उन सब की नजरें कुछ पे जमी होती हैं। जंग के बावजूद सबके चेहरे मुतमईन और पुरसुकून दिखाई देते हैं। रात ढलती है, सूरज तुलू होता है। बालेन विलियम के साथ बुलंदी पर से आगे बढ़ रहा होता है और विलियम उसे कहता है, सारी रात उनकी तस्बीह और दुआओं की आवाजें हमारे गीतों से ज्यादा बुलंद थी और उन्होंने एक तोप भी नहीं चलाई। वो दोनों आगे बढ़ते बढ़ते सामने देखते हैं मगर पूरे का पूरा इस्लामी लश्कर गायब हुआ होता है। किसी सिपाही का नाम और निशान नहीं होता। ये देखकर बालेन पूछता है, वो कहाँ है? इसलिए में उन्हें पीछे से गोला टकराने की आवाज सुनाई देती है। गोली की आवाज सुनते साथ ही लोगों की दौड़े लग जाती हैं और मार्कोस आकर कहता है, उन्होंने पड़ाव किसी और जगह मुंतकिल कर दिया है। तो विलियम कहता है, लेकिन ये नामुमकिन है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। इधर काजी फाजल लिख रहे होते हैं। कोई हेडक्वार्टर नहीं था, कोई मंजनिके नहीं थी। खेमे झंडे सब खत्म हो गए थे। एक नक्कारा बजाए बगैर या एक चिराग रोशन किए बगैर हमारी फौज खामोशी से आगे बढ़ी। ना कोई घोड़ा हुनहुनाया, ना किसी तलवार की आवाज आई। रात भर दुश्मनों की सुनी वाहिद आवाज तकबीर इलाही की आवाज थी और यही वो चीज थी जिसने हमें छुपाया और महफूज किया था। साथ ही हम देखते हैं कि करारगाह नई जगह पे लगी होती है। सुल्तान अपने लश्कर के साथ वहां मौजूद होते हैं। बालेन बुलंदी पर पहुंचते साथ ही देखता है कि लश्कर बिल्कुल उनके सामने होता है। ये देखकर बालेन बहुत परेशान हो जाता है। काजी फाजल मजीद लिखते हैं, सूरज तुलू हुआ तो हमारा साया दीवारों की दूसरी तरफ पड़ गया। सिर्फ करारगाह ही मुंतकिल नहीं हुई थी, अब लड़ाई का तवाजुन भी बदल गया था और वो भी ये बात अच्छी तरह जानते थे। करारगाह में सुल्तान कहते हैं, हम दुश्मन को महसूस किए बगैर अपने हेडक्वार्टर को एक बेहतरीन जगह पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गए। करारगन उनसे कहता है, अब उनको अपने बारे में सोच लेना चाहिए मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, हमलों की तादाद में इजाफा कर दो, दुश्मन की मुजामत मुकम्मल तौर पर टूट जाए। इसलिए हमें इज्जतुद्दीन और तुमान वहाँ पे आते हैं और अमीर तुमान पूछता है, क्या अब आप अपने फैसले का ऐलान करेंगे मेरे सुल्तान? हम जब कुछ वापस लेंगे तो क्या आप हमें बदला लेने की इजाजत देंगे? सुल्तान उनसे कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी वही चीज चाहते हो। तो इज्जतुद्दीन कहता है, हमारा मकसद एक ही है, अगर आप दूसरी सूरत में फैसला करते हैं तो हम सुबह तक अपने दोस्तों के साथ हेडक्वार्टर छोड़ देंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं, कुछ जंजीरों से आजाद हो जाएगा। अगर हम इन जंजीरों को तोड़ नहीं सके तो हम उनको पिघलाने के लिए जहन्नुम से आग उठाएंगे। क्या आप इस आग को उठाते हुए जलने के लिए तैयार हैं? तो तुमान कहता है, हमें हक की रहमत पर भरोसा है, अगर वो आग हमें जलाएगी तो जला दे। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि काफिर भी वो तकलीफ बर्दाश्त करे जो हमारे आबाओ अजदाद ने बर्दाश्त की थी। सुल्तान कहते हैं, फिर जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। मैं आपको इंतकाम के लिए कत्ल करने के पहले असीर अपने हाथों में थका हारा बालेन आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते बालेन गिर जाता है। बालेन के हाथ पांव कांप रहे होते हैं। वो देखता है कि सामने एक नन्ही बच्ची फूल उठाई सीढ़ियों में बैठी होती है और मुस्कुराते हुए बालेन को देखती है। बालेन भी उसे देखता ही चला जाता है। इसलिए में विलियम बालेन के पास आता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, बालेन अब खत्म, खुदावन ने अपना नूर खुद से दूर कर दिया है, हम लोग हार गए। ये कहते साथ ही विलियम उठता है और जाने ही लगता है कि एक बार फिर रुकते हुए उससे कहता है, बालेन मेरी तुमसे एक आखिरी दरख्वास्त होगी, लाइब्रेरी में मौजूद मेरी तहरीरें उन्हें मेरे लिए छुपा दो। ये कहते साथ ही विलियम आगे बढ़ता है तो बालेन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? विलियम पलटता है, मुस्कुराते हुए उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। नन्ही बच्ची उठती है और बालेन के पास आती है। फिर वो फूल बालेन को पेश करती है। हाँफते कांपते बालेन उसे फूल ले लेता है और गमगीन होते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ में काजी फाजल तहरीर लिख रहे होते हैं, मोहतरमुल मुकाम सुल्तान के अमीर तुमान और मलिक इज्जतुद्दीन की तलब पे दिए जाने वाले जवाब ने हमें बहुत हैरान किया, लेकिन इस बार में उन्हें मुतनब्बा करने या एतराज करने के बजाय मैंने वक्त के साथ सीखी हुई हकीकत को पकड़ रखा है। सुल्तान मामलात के तमाम राजों को जानते हैं। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उधर अमीर तुमान और मलिक इज्जतुद्दीन सुल्तान के पास आते हैं और सुल्तान से पूछते हैं, आपने हमें बुलाया है? तो सुल्तान उनसे कहते हैं, शहर गिरने वाला है, हमारे किए गए फैसले के मुताबिक शहर में जो कोई भी है उसे तलवार की घाट उतारेंगे। क्या आपने वाकई अपनी तैयारियां कर ली हैं? तो मलिक इज्जतुद्दीन कहता है, हम कैसी तैयारी करें? सुल्तान पूछते हैं, क्या मैं मस्जिदुल अक्सा में लाशों की बदबू के साथ दाखिल हूंगा? हमें कब्रें खोदनी है और हमें बीमारियों से बचाव के लिए वसी मिकदार में दवाई की भी जरूरत है। तो अमीर तुमान कहता है, जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। सुल्तान उनसे पूछते हैं, मारने के तरीके के तौर पे तुमने क्या सोचा है? हम यकीनन इतने ज्यादा लोगों को तलवारों से नहीं मारेंगे, हमें तेज तर रास्ता तलाश करना चाहिए। तो मलिक इज्जतुद्दीन कहता है, मेरे सुल्तान आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जैसा किया हम भी वही करेंगे। सुल्तान कहते हैं, ठीक है अब शुरू करते हैं। करातेगन। सुल्तान की आवाज पर करातेगन एक नन्हे बच्चे और एक खातून के साथ वहाँ दाखिल होता है। करातेगन सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान जैसा कि आपने हुक्म दिया था, जंग के बाद जिन कैदियों को हमने पकड़ा था आपके हुजूर ले आए हैं। वो खातून रोते हुए कहती है, हमें मत मारें, हमारी जानिब से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, हमें अपनी हुक्मरानी में रहने दें, हम कभी बुग़्ज़ नहीं रखेंगे। सुल्तान तलवार उठाकर मलिक इज्जतुद्दीन और अमीर तुमान की जानिब बढ़ा देते हैं। बच्चा सुल्तान से कहता है, हमने आपके साथ क्या किया? क्या यही मुसलमानों का इंसाफ है? सुल्तान इज्जतुद्दीन से कहते हैं, अपना जवाब इस तलवार से दो इज्जतुद्दीन। चलो तुम्हारा बेटा नूरुद्दीन, अगर मुझे सही तौर पर याद है तो वो इस नौजवान लड़के के हम उम्र होगा, क्या ऐसा नहीं है? तो इज्जतुद्दीन कहता है, मेरे बच्चे को सबसे दूर रखें। सुल्तान उसे कहते हैं, फौरन जलाल में ना आओ, मैंने सोचा कि जब तुम वापस लौटोगे तो तुम्हारे पास अपने बेटे को बताने के लिए कोई यादाश्त होगी। नूरुद्दीन बड़े चचा जिनका नाम उसे मिला, उनका मिंबर रखे जाने से पहले कुछ में क्या हुआ इस बारे में मुतजस्सिस होगा, मैंने ये सोचा। ये सुनते साथ ही इज्जतुद्दीन सर झुका लेता है तो सुल्तान तुमान से कहते हैं, अमीर तुमान तो फिर ये फरीजा तुम पे आन पड़ा है, चलो हिचकिचाओ नहीं, फितने का सर बचपन में ही कुचल दिया जाना चाहिए। और ये करते वक्त कैद के दौरान कुछ में अपने भाई अमीर या रोकी के सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म से मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान फर्क किए बगैर एक एक दरवाजे पर जाकर खुराक तकसीम करने को हरगिज दिमाग में ना लाना, वरना तुम्हारा ये शौक बर्बाद हो सकता है। अब रहम करने की ना जगह है ना वक्त। मगर बच्चे को देखते हुए अमीर तुमान भी शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, तोल देने की जरूरत नहीं है, इन्हें छोड़ दो। सुल्तान उनसे पूछते हैं, तो तुम कतलेआम से दस्तबरदार हो गए हो? हाँ तुमान। तो तुमान कहता है, शुरू से ही आप हक बिजानिब थे, हम इंसाफ का बोलबाला करते दौरान अपने गुस्से के कैदी बन गए। सुल्तान इज्जतुद्दीन से पूछते हैं, क्या आप भी हम ख्याल हैं मलिक इज्जतुद्दीन? तो इज्जतुद्दीन भी हाथ बांध कर सर झुका लेता है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं, तो फिर ये हमारे लिए सबक बन जाए। अपने तमाम बंदों पर बिला अस्तस्ना रहम करने वाले रहमान ने फरमाया कि तुमसे जंग करने वालों से अल्लाह के रास्ते में तुम भी जंग करो, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई हुदूद
दूध को ना फैलाएंगे, क्योंकि अल्लाह हाथ से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। करातेगन इन्हें ले जाओ, इन्हें खाना दो और महफूज मुकाम पे रिहाइश दो। ये सुनते साथ ही करातेगन उन्हें ले जाता है और सुल्तान उन दोनों से कहते हैं, उस गलती पर इसरार ना करने के लिए मैं तुम दोनों का मशकूर हूँ। अब अपने सिपाहियों के पास वापस जाएं, कल मेराज का दिन है, दुआ करते हैं। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम कुछ में देखते हैं कि विलियम की कलम और कागज वहीं पे होते हैं और वो फंदे की जानिब चलता हुआ जा रहा होता है और विलियम की आवाज गूंजती है, मैं सलाहुद्दीन को हैरानगी से देख रहा हूँ। जब वो सजदा कर रहा था तो हमने तलवार निकाली, जब वो माफ कर रहा था हम सजा दे रहे थे। ये कहते साथ ही विलियम फंदे की जानिब देखने लग जाता है। इधर काजी फाजिल का कलम मुसलसल चल रहा होता है। 27 रजब 583 हिजरी, जुमे का दिन, मुहासरे का 12वां दिन। बालेन की मुलाकात की पेशकश समेत खत पढ़ते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन के चेहरे पर ना फतह का गरूर था और ना ही गुस्से के आसार थे। तो नाज़रीन, इस तरह ये शानदार तारीख लिखी जा रही थी। अपने लोगों के लिए विलियम लिख रहा था और हमारे लिए काजी फाजिल। अगले मंजर में हम देखते हैं कि सुल्तान के सामने बालेन बैठा होता है। सुल्तान उससे कहते हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ बालेन। तो बालेन कहता है, तुमने कहा अगर मैंने शहर को अमन के साथ सुपुर्द कर दिया। मगर बालेन की बात मुकम्मल होने से पहले ही सुल्तान कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है बालेन। मेरे सिपाहियों के शहर में झंडू के साथ दाखिल होने के बाद क्यों सुलह और शहर को हवाले करने की पेशकश कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पेशकश को नहीं दोहराऊंगा और अगर मैं तलवार लेकर शहर में दाखिल हुआ तो मैं वो भी करूंगा जो तुमने किया था। बालेन कहता है, हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मान लेते हैं कि तुमने मेरी पेशकश कबूल नहीं की और जो तुमने कहा उसी के मुताबिक करने का फैसला किया। तो खुदावंद की कसम में तमाम औरतों और तमाम बच्चों को कत्ल करके सबको जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हें कैदी बनाने के लिए शहर में ना कोई मर्द ना कोई औरत मिलेगी। मैं सारे घर जला दूंगा। तमाम मुसलमान कैदियों को एक एक करके जाती तौर पे कत्ल करूंगा। मैं किबलतुल सुखरा और तमाम मुकद्दस मस्जिदों को तहस नहस कर दूंगा। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सुल्तान उसे कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी धमकियों से मुझे अपनी बात पर ला सकते हो? तुम कहते हो तो इस तरह कहते हैं। सलाहुद्दीन कुछ के लोगों के साथ वही करने वाला था जैसा कि सुलेबी ने किया था, लेकिन बालेन उसमें रुकावट बन गया है ना। ये सुनते साथ ही बालेन मुट्ठी खोलता है जिसमें उस बच्ची का फूल होता है। बालेन उस फूल को देखते हुए कहता है, जब तुम शहर में दाखिल होगे तो मेरे लोगों की जान और माल की हिफाजत करोगे, इस बात का वादा करो। सुल्तान कहते हैं, इस मामले में तुम मुझ पे शक ना करने जितना जानते हो बालेन। जिन्हें हमारे रहम से हिस्सा नहीं मिलेगा वो सिर्फ टेम्पलर सुरमा होंगे। बालेन कहता है, मैं अपने लोगों के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ हूँ, मैं तुमसे ये वादा लेने पे मजबूर हूँ। जवाबन सुल्तान कहते हैं, बगैर किसी तफरीक के कुछ के शहरी मेरे लोग हैं बालेन, उनकी जाने माल और इज्जत मेरे सुपुर्द हैं और मुझे ये भी कहना है, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि तुम कह रहे हो, बल्कि हम इस मुकद्दस शहर में मौत देने नहीं जिंदगी देने आए हैं। अगर एक बच्चा भी रोता है तो ये जीत मेरा कफन बन जाए। यह सुनकर बालेन बहुत खुश होता है और खड़े होकर कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम वो कर सकते हो जो हम नहीं कर सके और यहाँ जन्नत की बादशाही कायम कर सकते हो। ये कहते साथ ही बालेन फूल सुल्तान के सामने रखता है और चला जाता है। फिर नाज़रीन, हम उस मंजर को देखते हैं जिसका हम एक तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ कुछ में दाखिल होते हैं। सबके चेहरे खुशी से खिलखिला रहे होते हैं। हर जबान पर अल्लाह अकबर होता है। हाथों में झंडे और जबान पर अल्लाह के नाम। एक तरफ बाज़ंतीनी लोग बहुत डरे सहमे खड़े होते हैं। ये देखकर सुल्तान उनके पास जाते हैं और एक आवाज गूंजती है, कुछ में रहने या जाने वाला हर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस्लाम के सरचश्मे रहमत से अपना हिस्सा वसूल करेगा। साथ ही सुल्तान बालेन का दिया हुआ फूल वापस उसी बच्ची को थमा देते हैं, जिसे देखकर बच्ची बहुत खुश होती है। आवाज मजीद गूंजती है, कुछ के तमाम मुरझाए हुए फूल इस रहमत की बरकत से दोबारा खिल उठेंगे। इसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन के हाथ से बनाए हुए मिंबर को देखते हैं जो कुछ में ही रखा होता है। आवाज गूंजती है, मिंबर जंगी का फतह अल्लाह की। अगले मंजर में सुल्तान एलिसा करातेगन काजी फाजिल और गोगबरों के साथ मस्जिद अक्सा को देख रहे होते हैं। आवाज गूंजती है, उसने एक ख्वाब देखा। उसने अपने अज़म और मेहनत के साथ सब कुछ और हर चीज के बावजूद चलकर अपने ख्वाब को हतमी शक्ल दी। उस ख्वाब को ताबीर दी और आखिरकार ये सच हो गया। ये फतह आंसू से मुज़य्यन इबादत से हासिल करदा फतह थी और फर्जंदाने उम्मत को ये बात हमेशा याद रखनी होगी। फतह को जाने वाला रास्ता अल्लाह के सामने सजदे और इत्तेहाद से गुजरता है। ये देखो, जब उम्मत एक हुई तो कुछ आज़ाद हो गया। उस दिन हम सबके दिलों में एक ही बात और हकीकत गूंजी, अज़ल से अबद तक कुछ हमारा है और हम कुछ के हैं। अज़ल से अबद तक कुछ हमारा है और हम कुछ के हैं। और इसके साथ ही सुल्तान सजदा रेस हो जाते हैं। मस्जिद अल-अक्सा को देखते हुए गुगबरो और काजी फाजिल भी सजदे में चले जाते हैं, जबकि मस्जिद को देखते हुए एलिसा और करातेगन की आंखें भर आती हैं। वो अजीब कशमकश का शिकार होते हैं, मगर एलिसा एकदम से सजदे में चला जाता है। करातेगन भी ये देखते हुए मुस्कुराता है और सजदा बजा लाता है। उन पांचों के सजदे में होते हुए ही ये तारीख साज सीरीज इख्तिताम पजीर होती है।